हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों का पहला चैप्टर जैसा कि मैंने पहले बताया, तुम लोगों को रिपीट भी किया उसको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये तुम लोगों को कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि तुम लोग इसका नोट्स भी बना लिए होंगे और पढ़ करके अच्छे से समझते रहना। आज से हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस है एक तरह से केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानें। एटम, मॉलिक्यूल्स, इस सब के बारे में पिछले चैप्टर में जो एक जनरल ओपिनियन है उसकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या है, सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का या मैटर का। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर डीपली जा करके उसकी स्टडी करेंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर होता किस तरह से है। तो चैप्टर सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसमें जो कुछ तुम्हें पढ़ना है, वैसे तो सिलेबस तुमने पूरा देखा होगा, मैंने भेजा है, लेकिन इस चैप्टर में जो जो पढ़ना है वो यहाँ मैंने नोट कर दिया है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, atomic number, isotopes and isobares, atomic models and their limitations, dual nature of matter and light, de Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbital, subshell and shell, shape of SPDF orbitals, quantum numbers, Bohr principle, Pauli principle, Hund rule, electronic configuration of atoms and stability of half filled and completely filled orbitals। इसमें से थोड़ा बहुत ज़रूर तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th के क्लासेस में, तो लेकिन यहाँ पे हमें पूरी कंप्लीट स्टडी करनी है एटम के बारे में। तो पहले थोड़ा बहुत किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के। द वर्ड एटम इज़ ए ग्रीक वर्ड meaning indivisible, that is an ultimate particle which cannot be further subdivided. The idea that all matter ultimately consists of extremely small particles was conceived by ancient Indian and Greek philosopher. The old concept was put on firm footing by John Dalton in the form of atomic theory, which he developed in the years 1803 to 1808. This theory was a landmark in the history of chemistry. During the past 100 years, scientists have made contributions which helped in the development of modern theory of atomic structure. The work of J.J. Thomson and Ernst Rutherford actually laid the foundation of the modern picture of the atom. It is now believed that the atom consists of several particles called subatomic particles like electron, proton, neutron, and positron, neutrino, meson, etc. So, electron, proton, and neutron are the permanent particles, while these are stable particles, these are non-stable. Out of these particles, the electron, the proton and the neutron are called fundamental particles and are the building blocks of the atoms. Now स्टडी ऑफ एटम करने से पहले वन बाय वन हमको देखना होगा किस तरह से जो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि एटम डिवाइड हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इसके लिए पहले वन बाय वन इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किस तरह से हुई। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? Electron was discovered by J.J. Thomson in 1897 when he was studying the properties of cathode rays. Now, this is picture of J.J. Thomson. Thomson won Nobel Prize in 1906 for discovering the elementary particle electron. Interestingly, his son G.P. Thomson
also won the Nobel Prize in 1937 for proving the wave-like properties of electron. Now see the discovery of electron and what is cathode rays. J.J. Thomson discovered cathode rays, for which he constructed a glass tube which was partially evacuated, that is much of the air was pumped out of the tube, यानी वैक्यूम ट्यूब में डेवलप किया गया. Then he applied a high electrical voltage between two electrodes at higher end of the tube. He detected that a stream or particle was coming out from the negatively charged electrode, which is cathode, to positively charged electrode. This ray is called cathode ray and the whole construction is called cathode ray tube. The scheme of cathode ray tube is given in figure. This is the experiment of J.J. Thomson. तो ये ट्यूब थी जिसमें कि वैक्यूम डेवलप किया गया. इधर इन्होंने कैथोड माइनस चार्ज इस पे था, इधर एनोड लिया, फिट किया और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ करके हाई वोल्टेज इन बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स के बीच पास किया. तो इधर से कैथोड की तरफ से रेज ऑफ पार्टिकल्स निकला जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाता है. तो इससे ये क्या प्रूव होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर जा रहा है, तो ये सारे के सारे निगेटिव चार्ज हैं. उसके बाद डायग्राम देखने के बाद उसके बाद क्या कंक्लूजन उसका निकला, यानी प्रॉपर्टीज चेक किया J.J. थॉमसन ने. तो वो किस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड पार्टिकल्स, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. चूँकि कैथोड से निकल रहे हैं तो वो देखे जा रहे हैं सीधे एनोड की तरफ जा रहे हैं. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कैथोड, यानी किसी भी मेटल का कैथोड हम लें उसका इफेक्ट इन पे नहीं पड़ता. वो हर हाल में उनका फ्लो जो है कैथोड से एनोड की तरफ होता है. अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पथ ऑफ कैथोड रे डिफ्लेक्ट द रे टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. हेंस कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. तो अगर इनके रास्ते में ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और निगेटिव किया जाता है, तो चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज है तो इसलिए ये इधर से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव की तरफ जो है. Now J.J. Thomson measured the charge by mass ratio, that is E upon F of cathode ray particles using deflection in both electric and magnetic field. He found E upon M, electron of the mass of the electron, charge of the electron upon mass of the electron is equal to minus 1.76 into 10 to the power coulomb per gram. The cathode ray particles turned out to be 2000 times lighter than hydrogen. Although we got E upon M ratio for electron from J.J. Thomson's cathode ray tube experiment, we still don't know the exact charge E for electron. American physician Robert Millikan designed an experiment to measure the absolute value of the charge of electron, which is discussed here. ये अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं और मिल्कन measured the charge of an electron using negatively charged oil droplets. The measured charge of an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is discovered by scientist Robert Millikan. Using the measured charge of electron, we can calculate the mass of electron from E upon M ratio given by J.J. Thomson's cathode ray experiment, that is E upon M is equal to minus 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram, that is M is equal to E upon minus 1.76 into 8
Putting value of E, we got m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 928 gram. This is the weight of electron. Now discovery of proton. प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था इस तरह का। यहाँ इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किया जिससे कि अल्फा पार्टिकल इमिटेड होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और ये गोल्ड फॉयल है। अल्फा पार्टिकल जब इस पे भेजे गए तो ये कुछ सीधे निकल गए, कुछ इधर उधर निकल गए और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। तो जब ये इसमें टकराए जा कर के एटम से, क्योंकि ये भी अल्फा पार्टिकल थे, पॉजिटिव थे, और तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, तो इससे क्या निकाला गया कि जो एटम में कोई पार्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो अल्फा पार्टिकल्स को लौटा देता है। इन 1909 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन हिज फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का डिटेल ऑब्जर्वेशन किया रदरफोर्ड ने, जो कि एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने, और उसके बाद उन्होंने इस पे कंक्लूजन निकाला। इन हिज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन एन ultra-thin gold foil and then detected the scattered alpha particle in zinc sulfide screen। जो एक्सपेरिमेंट में देखा स्क्रीन था वो किसका था, जिंक सल्फाइड। तो रिजल्ट क्या निकला, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू बाउंस बैक हुए थे, यानी कि टकरा करके वापस लौट गए। नाउ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड प्रपोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर ऑफ एन एटम। और गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड से पहले, इसकी भी स्टडी कम्प्लीटली रदरफोर्ड ने की। उसमें भी उसी तरह से ट्यूब ली गई थी, वैक्यूम ट्यूब, और इनमें इधर ये कैथोड है। एनोड उन्होंने लिया था जिसमें कि 6 होल थे। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, तो कैथोड रेस तो निकल ही रही थी जो जा रही थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रोड की तरफ, और इस तरफ से भी यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से भी रेस निकल रही थी जो कैथोड की तरफ आ रही थी। तो जिससे ये पता चला कि एटम में दूसरे पार्टिकल भी हैं जो कैथोड रेस से जो दूसरी रेज निकल रही हैं, इनको कहा गया कैथोड, ये पॉजिटिव रेज हैं जिन पे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हुए प्रोटॉन के खोज में। पहला गोल्डस्टीन का ये प्रयोग था, उसके बाद दूसरा रदरफोर्ड ने किया था, और रदरफोर्ड ने ही कंक्लूजन निकाल करके प्रोटॉन के बारे में और एटम्स के बारे में कंक्लूजन दिया। According to Rutherford, most of the atom's mass and its entire positive charge are confined in a small core called nucleus. The positively charged particles are called proton. Now, most of the volume of an atom is empty space. The number of negatively charged electrons dispersed outside the nucleus is the same as number of positively charged in the nucleus. It explains the overall electrical neutrality of an atom. जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, जिससे कि एटम न्यूट्रल बना रहे। Third particle of the atom is a neutron. This is discovered by Chadwick. From the previous discussion, we can see that the gold foil experiment gave a clear picture of the structure of atom, which consists of proton and same number of इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ ये है अल्फा पार्टिकल्स रेडिएशन, इस तरह से सीधे ये प्रोटॉन डिस्पेड न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है जिससे लगता है कि कोई और भी पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट बेरिलियम एटम पे चैडविक ने किया था, पे अल्फा पार्टिकल का जब इन्होंने बम्बार्डमेंट किया तो उन्हें मिला कार्बन C13 जो कि कन्वर्ट हो गया Cc12 में, और एक और पार्टिकल निकला जिस पे कोई चार्ज नहीं था, उसको उन्होंने नाम दिया
न्यूट्रॉन 0 and 1 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया। बट आगे इसके बारे में डिस्कस है। बट साइंटिस्ट सून रियलाइज दैट द एटॉमिक मॉडल ऑफर्ड बाय रदरफोर्ड इज नॉट कंप्लीट। Various experiments shows that mass of the nucleus is approximately twice than the number of proton. What is the origin of this additional mass? Rutherford postulated the existence of some neutral particles having mass similar to proton, but there was no direct experimental evidence. Several theories and the experiment observation eventually led the discovery of neutron. तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का ये रिएक्शन था जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे नोट कर लेना। ये चैडविक द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंट हैड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये बेरिलियम है, इस पे इन्होंने बम्बार्डमेंट किया। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट देखा, प्रीफिक्स बैग्स थे। तो रिएक्शन जो हुआ वो इस तरह से था। 4B9 ये अल्फा पार्टिकल्स है, 2A4, ये 4 इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। इसके बम्बार्डमेंट से हमें 2 पार्टिकल मिले, एक कार्बन और एक ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम था वो करीब करीब, मास था वो करीब करीब प्रोटॉन के बराबर था। इसका नाम चैडविक ने न्यूट्रॉन रखा। Now what we have learned about these experiments? First, atomic mass is equal to mass of proton plus mass of neutron. Second, for a neutral atom, number of proton is equal to number of electron. Third, measured masses and charge of the 3 elementary particles are given here. इलेक्ट्रॉन सिंबल इसका E होता है और इस पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ निगेटिव दिखाया गया है। मॉस इसका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का सिंबल P+ से भी दिखाते हैं और H+ से भी दिखाते हैं। इसका इस पे चार्ज उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इस पे प्लस होता है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, इतना होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, N0 से दिखाते हैं इसको। इस पे चार्ज नहीं है, इसका मास होता है प्रोटॉन के बराबर 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी अलग अलग पार्टिकल्स की जानकारी हमें हो गई, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का ये नहीं पता था। तो इसके भी बराबर एक्सपेरिमेंट जारी रहे। तो रदरफोर्ड ने ही इस पे एक्सपेरिमेंट किया, जिसका अभी डायग्राम तुम लोगों ने देखा, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। In 1911, Ernst Rutherford and his co-worker carried out a series of experiments using alpha particles. That is, beam of alpha particle was directed against a thin foil of about 0.0004 cm thickness of gold or platinum or silver or copper respectively. The foil was surrounded by a circular fluorescent, इसके बारे में पढ़ लो, फिर डायग्राम दिखाते हैं। फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल स्टक द स्क्रीन इट इज प्रोड्यूस्ड ए फ्लैश ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया था रदरफोर्ड ने। ये अल्फा बीम, अल्फा पार्टिकल्स निकलने के लिए ये मटेरियल लिया गया तुम्हारा, जिसमें कि रेडियम रखा गया था, जिसको कहा गया अल्फा पार्टिकल इमिटिंग सोर्स। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इससे निकल रही है। यहाँ बीच में क्या है, गोल्ड फॉयल है, ये जिंक सल्फाइड का पूरा स्क्रीन तैयार किया गया। तो इससे क्या, जब यहाँ पे आकर के बीम टकरा रही है अल्फा पार्टिकल की, तो उसके बाद किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल, कुछ सीधे निकल गए। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विद लिटिल नो डिफ्लेक्शन एंड अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट ए लार्ज एंगल। तो इन सारी चीज़ों को देख करके
तो कुछ कंक्लूज़न निकाला रदरफोर्ड ने, उसका देखो डायग्रामेटिक जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं, ये बीच में गोल्ड फॉयल है, तो किस तरह से इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ इधर घूम गए, कुछ इधर वापस लौट गए, कुछ सीधे टकरा करके यहाँ से वापस लौट गए और कुछ इस साइड चले गए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम के बीच में कोई रिजिड पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को वापस भी भेज देता है, इधर भी डिफ्लेक्ट कर देता है, और जब उससे ये पार्टिकल नहीं टकराते तो सीधे भी निकल जाते हैं, साइड में रिफ्लेक्ट भी हो जाते हैं। यानी वो दृढ़ पार्ट है जो कि इफेक्ट डालता है अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूज़न निकाला वो हम देखते हैं। ये अगला डायग्राम ये है, ये जैसे एटम्स हैं, तो अगर ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से टकराते हैं, जिस पे भी प्लस जहाँ पे है यानी न्यूक्लियस है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या यहाँ से ये वापस भी लौट जाते हैं या इस साइड। लेकिन अगर ये इस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से नहीं टकराते तो ये सीधे निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा कंप्लीट स्टडी करने के बाद कुछ कंक्लूज़न निकाले गए और जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेर मेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% वेंट स्ट्रेट विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन। डायग्राम में देखा जो अभी। सेकंड, ए फ्यू ऑफ देम गोल डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, एंड थर्ड, ए वेरी फ्यू did not pass through the foil at all but suffered large deflection more than 90 degree or even came back in more or less the direction from which they have come, that is deflection of 180 degree. The following conclusions were drawn from the above observation. First, since most of the alpha particles went straight through the metal foil undeflected, it means that there must be very large empty space within the atom, or atom is extraordinarily hollow. Second, a few of the alpha particles were deflected from their origin path through moderate angles. It was concluded that whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom. When alpha particles come from closer to thin point, they suffer a force of repulsion and deviate from their path. The positively charged heavy mass which occupy only a small volume in an atom is called nucleus. It is supposed to be present in the center of the atom. So this is the discovery of the nucleus by Rutherford. Now third point, a very few of the alpha particles suffered a strong deflection or even return on their path, indicating that the nucleus is rigid and alpha particles recoil due to direct collision with the heavy positively charged mass. So now this is the topic about the discovery of electron, proton, neutron and nucleus. Then और इन चारों की डिस्कवरी के बाद एक जनरल इमेज बन गया प्रैक्टिकल उसका एटम का, कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो अगले वीडियो में हम एटम के बारे में, एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करके एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे।